Good afternoon, students. In the previous practical session, we have completed the experiment number 20, that is the mixture number 1. Identification of two anions in given mixture. Right? उसी मोमेंट पे मैंने आप लोगों को बताया था, there is another experiment to identify two cations from the given mixture of salts. These are the qualitative analysis. First, identification of two anions is completed in previous session. Then we have started the experiment number 23, identification of two cations from given mixture of salts. Right? मिक्सचर जैसे लास्ट टाइम बनाया था लास्ट एक्सपेरिमेंट में वैसा ही मिक्सचर रहेगा, क्योंकि मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय द टू कंपाउंड्स एंड इन दैट कंपाउंड in last session we are finding out the two anions, but this mixture also contains the two cations. Then this is the experiment number 23 to identify the two cations from given mixture of salts. Now see, this experiment is actually given in page number 99, but you written experiment number 23, that is mixture number 1, on page number 111. See, this is your experiment number 23, mixture number 1. Same anions का हम लोगों ने एक ही mixture लिया है. For this year, under the cations, there is only the mixture number 1 is taken. Clear? Then started the qualitative analysis, identification of two cations in given mixture. See here, there is one table given in page number 99 that contains first column group, second column cations, then group reagent, and last is the group PPT. See here, there are many cations are given. That is NH4 plus, Pb2 plus, Cu2 plus, arsenic 3 plus, iron 3 plus, aluminium 3, all this. तो आप लोगों का इनऑर्गेनिक मिक्सचर इसमें से दो कटायन को लोग के कोई भी बन सकता है, but you all are lucky. For this year there is only the one mixture is taking for exam, because अगर 3 मिक्सचर्स लास्ट ईयर की तरह अगर लेते तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से अनायन से. बट इस साल तो तुम लोगों को डायरेक्टली एक ही मिक्सचर आ रहे, तो तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो फॉर द एग्जाम. नाउ क्लियर? देन हियर इज अ ग्रुप इज स्टार्टेड. दैट ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In your mixture there are the two cations are present, and these two cations contains the two groups, because मिक्सचर ऐसे बनाया रहेगा कि आप लोगों के जो दो cations रहेंगे वो दोनों अलग ग्रुप्स से रहेंगे. राइट? दोनों अलग ग्रुप से रहेंगे. अभी मैं ग्रुप नंबर 2 की बात कर रही हूँ, तो ग्रुप नंबर 2 में Cu2 प्लस और आर्सेनिक 3 प्लस है, तो मैं दोनों का मिक्सचर बना सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि इन दोनों का भी एक ही ग्रुप है, और अगर बनाती भी हो तो आप लोगों को उसका एनालिसिस करते करते डिफिकल्टी हो सकती है. तो याद रखना है आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड के लिए कि ऐसे दो कटायंस रहेंगे जिनका ग्रुप्स अलग अलग रहेगा. बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. दैट इज मिक्सचर नंबर 1. देन देर इज आफ्टर द टेबल देर इज वन सेंटेंस इज गिवन, द टू रेडिकल्स फ्रॉम द सेम ग्रुप. ओके, जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को वही है. उसके बाद नेक्स्ट कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. देर आर सम स्टेप्स included in this experiment. There is a first one, preliminary test, second dry test, then next preparation of original solution, next detection and analysis of group. Then point number E is confirmatory test, and last F is the result. Right? Confirmatory test is very important. तो आप लोगों को हर स्टेप्स के मार्क्स से एग्जाम में कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं होना चाहिए. और रिजल्ट में भी आप लोगों को ब्रैकेट में लिखा हुआ है. क्या लिखा है? रिपोर्टिंग cations with their correct valencies. If you are not written the correct valencies, then your marks is 0. That is the रिजल्ट का जो 1 मार्क्स रहता है वो आप लोगों को पूरा 0 मिल जाएगा अगर वैलेंसीज नहीं लिखी है तो. Right? Then started the mixture number 1. That mixture number 1 started with the preliminary test.
In this preliminary test, there are the two sub-tests are given. First is color and second is the nature. As like the anions, right? Anions में भी आप लोगों के steps यही थे और cations में भी यही है. But there is a difference in anions. Anions का जो experiment है आप लोगों का वो 8 मार्क्स के लिए आता है और आज का जो एक्सपेरिमेंट करे एक्सपेरिमेंट नंबर 23 ये आप लोगों को पूरा 10 मार्क्स के लिए आने वाला है. दिस एक्सपेरिमेंट इज कमिंग अंडर द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द 10 मार्क्स. तो इसका एक भी स्टेप मिसिंग नहीं होना चाहिए. क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टेड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट स्टार्टेड विद द प्रिलिमिनरी टेस्ट. देयर इज फर्स्ट कलर. See student, we have started the first preliminary test. This is your mixture. I am taking this mixture on a rep page. Okay. Then see your first one is the preliminary test. In preliminary test, your first test is color. You all are see what is the color of the mixture. That color is blue or bluish green. Right? Observation number 2. अंडर द कलर टेस्ट देर इज अ सेकेंड ऑब्जर्वेशन ब्लू और ब्लूइश ग्रीन और उसकी इन्फरेंस में लिखा हुआ है CO2 प्लस मे बी प्रेजेंट. दैट इज द रॉन्ग. तो वो इन्फरेंस में करेक्शन करना है हमें. वहाँ पे CU2 प्लस मे बी प्रेजेंट. क्लियर? वी आर गेटिंग द सेकेंड ऑब्जर्वेशन ब्लू और ब्लूइश ग्रीन. नाउ सी देर इज अ सेकेंड टेस्ट दैट इज द नेचर. नेचर के कॉलम में दिया हुआ है क्रिस्टलाइन, एमआरपस एंड थर्ड इज द हाइग्रोस्कोपिक. That we are observe only for the crystalline and amorphous. Hygroscopic compound तुम लोगों को नहीं रहेगा. Then see it is crystalline और amorphous. अगर आप लोग देख रहे हो तो अच्छे से crystals दिखाई दे रहे हैं. It is not the amorphous. मैं हाथ में ले रही हूँ तो देखो अच्छे से crystal है पूरे के पूरे नीचे गए. It is not the amorphous. That is the talcum powder like. Clear? These are your first two tests from preliminary test. First color and second is the nature. Then see, अभी भी मैं बता रही हूँ अनायंस की तरह तुम लोग टिकिंग मत करना. टिकिंग कर रहे हो तो पेंसिल से करोगे, है? पेन से मत करना. Then first in color you get the blue or bluish green, that is CO2 plus may be present. Second nature, in that nature we are getting the crystalline, and in crystalline there is a water soluble salts like nitrate, sulfate, halide of NH4 plus Al3 plus etc may be present. Then see here from the color we are guessing the first cation कि हो सकता है चांसेस है कि वहाँ पे CU2 प्लस प्रेजेंट होगा. और सेकंड क्रिस्टलाइन नेचर में कुछ पता चल रहा है हमें कि क्या हो सकता है. वन इज द अमाइनो अमोनियम हो सकता है या फिर एल्यूमिनियम भी हो सकता है. तो हम लोग आगे टेस्ट में देखते हैं विच आर गेटिंग. Then after the preliminary test, we are starting the dry test. See, dry test for basic radical. Under this capital B point, there are some tests are given. First, heating in a dry test tube. Then there are some observations are given. We are see which are getting. Then second test is charcoal cavity test. Third is the NaOH test. Fourth is the flame test. ये जो फोर्थ टेस्ट है फ्लेम टेस्ट. लास्ट ईयर तक फ्लेम टेस्ट सिलेबस में नहीं थी बट इस साल फ्लेम टेस्ट भी उन्होंने ऐड कर दी है तो वो भी हमें एग्जाम के लिए करना ही है. नाउ सी द फर्स्ट टेस्ट हिटिंग इन अ ड्राई टेस्ट. इन द अनायंस एक्सपेरिमेंट वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस हिटिंग इन अ ड्राई टेस्ट की कैसे करनी है. उस मोमेंट पे जैसे की थी परफॉर्म भी वैसे ही करनी है. सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना है कि क्या आ रहा है. देन स्टार्टेड दिस टेस्ट. सी स्टूडेंट, आई एम टेकिंग द वन ड्राई टेस्ट ट्यूब. अभी लास्ट एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मैंने बताया था अगर टेस्ट ट्यूब वेट है तो आप लोगों को उसको बर्नर के ऊपर ड्राई करनी है. बट फॉर द टुडेज एक्सपेरिमेंट आई एम ऑलरेडी ड्राई इट एंड यूज. देन हीटिंग इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब के टाइम पे हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत है तो मैंने पहले रेडी करके रखा है. देन ऑन द बर्नर
Then see student, take the small quantity of mixture and add into the dry test tube. Right? अभी देखो मैंने टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लिया हुआ है. Then heat it strongly in an oxidizing flame, that is the blue flame, and observe the changes taking place. Then see which observation we are getting. See, जब टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने सॉल्ट लिया था, दैट हैविंग द कलर्ड सॉल्ट, राइट, इट इज द ब्लूइश. देन जैसे हीटिंग हुई आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? इट बिकम्स ब्लैक ऑन हीटिंग. क्लियर? इट बिकम्स ब्लैक ऑन हीटिंग. दैट मीन्स विच ऑब्जर्वेशंस वी आर गेटिंग? देयर इज द ऑब्जर्वेशन नंबर 4 इज हीटन. That is observation number 4. Colored salt becomes brown or black on heating. We are getting the black, not the brown. So when you are written this, only the black, right? That is the black on heating. And there are some cations given in inference, that is CO2 plus Cu2 plus Mn2 plus salts may be present. तो ये तीनों में से कोई तो एक होने के चांसेस हैं. क्लियर? देन स्टार्टेड द सेकंड चारकोल कैविटी टेस्ट. सी हाउ टू परफॉर्म दिस टेस्ट. देयर इज रिटर्न मिक्सचर प्लस Na2CO3 सॉलिड इन अ 1:2 रेशो. मतलब मिक्सचर अगर हम लोग 1 रेशो में ले रहे तो सोडियम कार्बोनेट हमें उसके डबल क्वांटिटी लेना है. क्लियर? Then see how to perform. See student, this is the watch glass. I am taking first mixture. See here. This is your mixture. अगर मैं मिक्सचर इतना ले रही हूँ तो इसके डबल मुझे क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट. राइट? और ये डबल लेना है मतलब आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली लेना है, ऐसे मेजर करके नहीं लेना है कि ये मैंने 0.5 ग्राम लिया तो 1 ग्राम हो. अप्रोक्सीमेटली लोगे, ऊपर नीचे चलेगा थोड़ा. से दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, राइट, उसके डबल लिया है. देन मिक्स दिस. दोनों को अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स करना है. क्योंकि हमारा मिक्सचर क्रिस्टलाइन है, वो क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट के अंदर एग्जैक्टली मिक्स हो जाने चाहिए. एग्जाम में तुम लोगों को वॉच ग्लास नहीं दिए जाते हैं, तो आप लोगों को जगह पे एक रफ पेपर रहेगा, तो आप लोग रफ पेपर के ऊपर भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो. सी दिस इज योर रफ पेपर. तुम लोग जैसे यूज़ करोगे मैं भी वैसा ही करके दिखाऊंगी. अभी आप लोगों का रफ पेपर है, तो रफ पेपर को ऐसे डायरेक्टली करके आप लोग थोड़ा मिक्सचर को मिक्स कर सकते हो अच्छे से, ताकि वो मिक्स हो जाए. देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अंडर द चारकोल कैविटी टेस्ट. सी दिस इज योर चारकोल एंड आई एम मेकिंग द कैविटी ऑन द चारकोल. अभी देखो एग्जाम में तुम लोगों को नए चारकोल मिलते हैं विदाउट द कैविटी. कभी कभी कैविटी बनी हुई रहती है तो आप लोग डायरेक्टली वो यूज़ करोगे. बट इफ देर इज नॉट द कैविटी मेड ऑन द चारकोल, देन यू मेड दिस कैविटी बाय द पेयर ऑफ टंग. ये पेयर ऑफ टंग को ऐसे के चारकोल के ऊपर रखना है और उसका थोड़ा सा कैविटी क्रिएट करना है. क्लियर? और कहाँ करोगे ये? ऐसी जगह पे नहीं, नहीं तो चारकोल की पाउडर ब्लैक हो जाता है पूरा प्लेस. एक दूसरा रफ पेपर लोगे, उसके ऊपर निकालोगे और कचरे के डब्बे में डाल दोगे फिर. क्लियर? नाउ वी आर गेटिंग द कैविटी ऑन द चारकोल. देन देयर इज नेक्स्ट स्टेप. फिल दिस मिक्सचर इन द कैविटी. कैविटी में मिक्सचर फिल करना है एग्जैक्टली ऊपर तक. आप लोग ऐसे ही डाल दोगे तो अभी वो क्या रहेगा, वो क्लोजली बाइंडेड नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा उंगली से ऐसे दबा देना है हमें. अगर ऐसे लगी कि अभी भी उसमें हो सकते है फिलअप, तो थोड़ा सा और डालो उसके ऊपर. क्योंकि बाद में हम लोग वाटर का ड्रॉप डालेंगे तो मिक्सचर अंदर चले जाता है.
क्या ठीक है, कैविटी के अंदर हम लोगों ने अभी मिक्सचर को फिल कर दिया। ये फिल करने के बाद अभी हम लोगों को इसको हल्का सा वेट करना है। तो ये कैसे करना है, इसके दो तरीके रहते हैं कि आप लोग मिक्सचर को पहले ही हल्का सा वेट करो और फिर कैविटी के अंदर फिलअप करो। बट उससे क्या होता है कि जब हम लोग कैविटी के अंदर वेट फिलअप करते हैं तो चारकोल का जो ब्लैक पाउडर रहता है वो मिक्स हो जाता है और थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। तो ड्राई को भरो और उसके ऊपर 2-3 वाटर्स के ड्रॉप डाल दो। ताकि वो थोड़ा सा वेट हो जाए, राइट। हाँ, अभी देखो ये हो गया। देन आप लोगों को जगह पे एक पेयर ऑफ टंग दी जाती है, तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, पेयर ऑफ टंग के अंदर हमें चारकोल को ऐसे पकड़ना है, राइट। एक हाथ में आप लोगों का पेयर ऑफ टंग रहेगा दैट कंटेन्स द चारकोल, और दूसरे हाथ में अभी हमें ब्लो पाइप लेना है। दिस इज द ब्लो पाइप, राइट। ये ब्लो पाइप के नीचे स्मॉल होल रहता है ताकि हम लोग मुंह से एयर पास कर सके। क्लियर। अभी देखो ये टेस्ट कैसे करनी है। सी, दिस इज योर बर्नर, वन हैंड कंटेन्स द चारकोल एंड सेकंड हैंड कंटेन्स द ब्लो पाइप। तो अभी मैं मुंह से ब्लो पाइप के ऊपर से एयर पास करूंगी ताकि जो रिड्यूस फ्लेम रहेगी वो मिक्सचर के ऊपर जा सके। सी, और ऐसे हमें ये कंटिन्यूस करना है जब तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है, राइट। सी, अभी देखो हल्का सा वो कलर्ड रेसिड्यू फॉर्म होते जा रहा है। हाँ, ओके। जब हम लोगों ने लिया था वो मोमेंट पे हमारा ब्लूइश था, राइट। हाँ, ओके। सी, इसके अंदर अभी देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ब्लूइश लिया था, अभी वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है, मतलब वहाँ पे कुछ तो कलर चेंज हुआ है। तो इसके हम लोग दो ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, या फिर अभी तुम लोगों को कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन साइड में थोड़ा सा रेडिश कलर भी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक है उसके आजू बाजू में। तो कलर्ड रेसिड्यू तो हमें मिल चुका है, राइट। तो दो ऑब्जर्वेशन से उसमें से जो लगे तुम लोग लिख सकते हो चारकोल कैविटी टेस्ट के लिए। सी, देयर आर सम ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या दिया हुआ है अभी, सब्सटेंस फ्यूजेस एंड सिंक इन द कैविटी। देखो ये ऑब्जर्वेशन भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों का सब्सटेंस फ्यूज हुआ है कैविटी के अंदर, दैट सब्सटेंस फ्यूजेस एंड सिंक इन द कैविटी, राइट। ये भी लिख सकते। देन सेकंड, देयर इज अ डिस्क्रिटेशन, ये दिया हुआ है तो हमें ये नहीं मिला था। देन देयर इज अ थर्ड, कलर्ड रेसिड्यू। अभी कलर्ड रेसिड्यू मीन्स कलरलेस को छोड़ के कोई भी कलर का रेसिड्यू मिला तो भी ये ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, राइट। देन आप लोग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखो या फिर थर्ड लिखो, बोथ आर द सेम। मैं यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन टिक कर रही हूँ, कलर्ड रेसिड्यू। Then that colored residue indicates the colored salt of Cu2 plus CO2 plus Ni2 plus Fe3 plus may be present। तो चांसेस है कि इसमें से कुछ तो मिले। अभी ऊपर जो मिले थे उनको अगर लेते हैं तो Cu2 प्लस हमारा कॉमन जा रहा है, राइट। देन देर इज अ चांसेस, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कटायन Cu2 प्लस। देन नेक्स्ट परफॉर्मिंग द थर्ड टेस्ट, NaOH test। See you all how to perform this test. Mixture plus NaOH solution and heat. After heating, hold the moist turmeric paper near the mouth of the test tube.
If there is a NH4 plus present, then moist turmeric paper turns brown. और अगर अमोनियम आयन नहीं है तो वो टर्न नहीं करेगा. Then see, we are taking the clean test tube, then add small quantity of mixture in it. Right? After the addition of mixture, then add NaOH solution. But NaOH solution add करने से पहले रेडी रहो कि हमारे पास moist turmeric paper रहे. This is your turmeric paper. I am taking the small piece of turmeric paper. And then wait it. तो उसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे वाटर भी लेके रखा है ताकि मैं उसके अंदर डाल के उसको वेट कर सकूँ. तो फिलहाल मैं अभी पहले we are adding the NaOH solution. This is the dilute NaOH solution. One thing remember, जब भी आप लोग NaOH solution ऐड कर रहे हो तो पहले बॉटल को शेक कर लेना है. Then add NH4 NaOH. और वहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट जब हम लोग मिक्सचर के अंदर NaOH सॉल्यूशन डालती हो तो उसमें से कुछ तो स्मेल आती है. अभी तुम लोगों को वीडियो में पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ. देयर इज अ स्मेल ऑफ अमोनिया इज रिलीज. बट ये तो हमें केमिकली फाइंड आउट करना है कि उसमें NH4 प्लस है कि नहीं है. राइट. देन योर नेक्स्ट स्टेप, हीट दिस सॉल्यूशन. जैसे NaOH डाला है तो आप लोगों को ब्लू सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है. राइट. ये आगे जाके याद रखना है. देन टर्मरिक पेपर को मैं थोड़ा सा वेट करके ले रही हूँ. सी, we are heating this solution and then hold the turmeric paper on the upside of test tube. Then observe what happens. After the heating, see on the turmeric paper, that turmeric paper becomes brown on heating. Right? That means there is a presence of ammonium ion. See, that turmeric paper becomes brown. Right? That turns the brown. Clear? That indicates the presence of ammonium ion. Clear? Now see, in this test, that is NaOH test, we are getting the first observation. Moist turmeric paper turns brown on heating. There is not becomes the red, so we are written only the brown. Clear? That indicates the ammonium ion may be present. और ये ammonium ion की special test थी. तो one cation हमें इस टेस्ट से पहले ही पता चल गया है. There is a presence of ammonium ion. Then perform the test number 4, flame test. फ्लेम टेस्ट पढ़ लो पहले क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये कैसे परफॉर्म करनी है वो अगर पता नहीं है तो गलत ऑब्जर्वेशन मिल सकता है. प्रिपेयर अ पेस्ट ऑफ द गिवन मिक्सचर विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऑन वॉच ग्लास. देन देयर इज अ प्लैटिनम वायर इज हियर. सी, दिस इज द प्लैटिनम वायर. राइट. ये आप लोगों को स्टेशनरी में मिल जाती हैं. दैट इज द प्लैटिनम वायर. और इस वायर के ऊपर हमें यहाँ पे एक लूप बनाना है हाथों से. जस्ट थोड़ा सा उसको साइड में मोड़ना है ताकि उसके ऊपर लूप बन जाए और हम लोग उसके अंदर मिक्सचर को फिट कर सके और फिर उसको हिट कर सके. नाउ सी हाउ टू परफॉर्म दिस. फर्स्ट मेक द लूप ऑन प्लैटिनम वायर. सी, ये प्लैटिनम वायर है हमारी. अभी प्लैटिनम वायर के एंड में मैं थोड़ा सा लूप बनाऊंगी. हाँ सी, देखो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा हल्का सा लूप बना लिया है ताकि इसके अंदर मिक्सचर को फिट कर सकें. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. प्लैटिनम वायर को हमें स्ट्रेट ही रखनी है लूप बनाने के बाद. देन नेक्स्ट स्टेप, टेक अ वॉच ग्लास. एक वॉच ग्लास लेनी है और वॉच ग्लास के ऊपर हमारा मिक्सचर लेना है. दिस इज योर सॉल्ट, दैट इज मिक्सचर. वॉच ग्लास के ऊपर लेंगे हम लोग
और उसके अंदर क्या डालना है हमें अभी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। दिस इज योर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले रहे हो तो प्रिकॉशन लेना है कि ड्रॉपर से ही लेना है। सी एट द 2-3 ड्रॉप्स ऑफ HCl ऑन मिक्सचर, राइट। तो अभी देखो मिक्सचर हम लोगों का थोड़ा सा ग्रीनिश टर्न हुआ है और वो वेट बन गया ताकि लूप के अंदर वो फिट हो जाए। नाउ सी, डिप दिस प्लैटिनम लूप इन द मिक्सचर। तो जस्ट क्या करना है कि वो लूप के ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर आ जाए। हाँ, अभी देखो लूप के ऊपर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है, दिखाई दे रहा है ग्रीनिश। देन हिट दिस प्लैटिनम वायर, हिट इट ऑन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दैट इज ब्लू फ्लेम, एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का कलर हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या मिल रहा है। अभी बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, ब्रिक रेड, पेल ग्रीन, एप्पल ग्रीन, क्रिम्सन रेड, ब्लूइश वाइट, देन ब्लूइश ग्रीन, एंड देन देर इज अ ग्रीन फ्लैशेस। तो अभी देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। सी, राइट, क्या दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज द ब्लूइश ग्रीनिश या फिर ब्लूइश वाइट दिखाई दे, दैट इज द ब्लूइश ग्रीनिश। क्लियर, वी आर गेटिंग दिस ऑब्जर्वेशन, that is bluish green, right? Then see, for this flame test we are getting the observation number 5, that is bluish green. then मैं टिक कर रही हूँ, तुम लोग मत करना। और ब्लूइश ग्रीन के लिए आप लोगों को रेडिकल यहाँ पे दिया हुआ है, that is the Cu2+ may be present, right? ये आप लोगों के रेडिकल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं लिखते टाइम, छपते टाइम, तो ये याद रखना है that bluish green means the Cu2+ ion, और ये green flashes for the Zn2+ Mn2+ salt। clear? तो भी यहाँ पे देखो, from the dry test NaOH test we are getting the ammonium ion, and from the flame test we are getting the Cu2+। that means it is observed your mixture contains these two cations, Cu2+ and NH4+। तो आगे जाके अभी हमें यही ऑब्जर्व करना है कि सच में ये आ रहे हैं कि नहीं। If there is a presence of these two, then perform the confirmatory test at the end. Then there is a next step for this experiment, preparation of original solution. Then how to prepare this original solution? Take some quantity of mixture in a test tube and add distilled water. Then dissolve the mixture completely. If the mixture does not dissolve completely, then warm it to dissolve, and clear solution is obtained. Then this clear solution is used as a OS for further test. Clear? Then see, to prepare the original solution. See student, I am taking the distilled water in a beaker, and this is the mixture in a test tube, right? Then prepare the original solution, add this distilled water in a test tube, आगे जाके हमें OS ही यूज करना है, तो आप लोगों को पहले ही हाफ टेस्ट ट्यूब या 1 फुल टेस्ट ट्यूब OS बना के रखना है। अभी उसको अच्छे से शेक करो ताकि मिक्सचर उसमें डिजोल्व हो जाए डिस्टिल वाटर में। और आप लोगों का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो आप लोगों को आगे के टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड कर रही हूँ उसको। सॉल्यूशन, इट इज़ द क्लियर सॉल्यूशन, राइट? हमें हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप लोगों को क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो स्लाइटली सॉल्यूशन को हीट करना है, अदरवाइज यू आर डायरेक्टली यूज दिस सॉल्यूशन एज अ OS।
Now see student, after the preparation of original solution, there is a next topic is given in your handbook. That is the point number D, detection and analysis of group. तो ये पहले समझ लो कि क्या है. Under the detection and analysis of group, the two groups must be detected for two basic radicals. Clear? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दो कटायन से मिक्सचर के अंदर तो आप लोगों को टू ग्रुप्स प्रेजेंट मिलने वाले हैं. तो आप लोगों का ग्रुप्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? देर इज अ फर्स्ट इज द जीरो ग्रुप, दैट इज ग्रुप जीरो, एंड देर इज वन नोट इज गिवन, फॉलो द सीक्वेंस फ्रॉम ग्रुप जीरो टू ग्रुप 6. देन देर इज अ फर्स्ट पॉइंट, इफ ग्रुप जीरो इज प्रेजेंट. अगर हमें स्टार्टिंग में ही ग्रुप जीरो मिल गया है तो बाकी के जो बचे हैं फ्रॉम 1 to 6 देर इज जस्ट वन ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट? If group 0 is present, then one group must be detected from group number 1 to 6. If group 0 is absent, अगर आप लोगों को ग्रुप 0 एब्सेंट मिल रहा है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा कि आप लोगों को दोनों ग्रुप्स नीचे के 1 to 6 ग्रुप्स में से प्रेजेंट मिलेंगे. क्लियर? तो ये बात अच्छी है कि स्टार्टिंग में ही पहले 0 का टेस्ट कर लो, ग्रुप 0 का. अगर यहाँ पे मिल रहा है तो आगे के टेबल में से सिर्फ हमें एक ही ग्रुप मिलेगा. क्लियर? देन देर इज अ नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ ग्रुप 0. देन ग्रुप 0 के लिए फर्स्ट टेस्ट क्या दी हुई है? OS plus NaOH solution, heat and hold moist turmeric paper near the mouth of test tube. अभी देखो ये टेस्ट हम लोगों ने अभी की थी. क्या की थी? मिक्सचर प्लस NaOH solution and heat, hold moist turmeric paper near the mouth of the test tube. यहाँ पे हमें क्या मिला था? Moist turmeric paper turns brown and that indicates the presence of ammonium ion. Same here, see, for the group number 0 there is a ammonium ion test and we are getting evolution of NH3 gas which turns moist turmeric paper brown, and that indicates the presence of group 0. Clear? Now see this. The OS. Take this OS in another test tube to perform zero group test. See, I am taking this OS in another test tube and then take the test tube holder because we are hitting this test tube, right? Then I am taking the turmeric paper that moist in the water. Then see this test, when we are hitting this solution there is a evolution of NH3 gas at the outside of the test tube and that turns the moist turmeric paper brown. Then मैंने यहाँ पे टर्मरिक पेपर को रख दिया है. अभी देखो क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है. जैसे वहाँ से NH3 गैस रिलीज होगी तो टर्मरिक पेपर ब्राउन हो जाएगा. See student, that turmeric paper becomes the brown on heating, right? That indicates the evolution of NH3 gas. That means there is a presence of ammonium ion. Clear? And we are getting the zero group test. Clear? And there is a next test is given. Second test for the zero group, OS plus NaOH solution plus heat, bring a glass rod dipped in concentrated HCl near the mouth of the test tube. क्लियर? तो जैसे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर ग्लास रॉड को डीप करके टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखेंगे तो वहाँ से हमें डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl इज रिलीज. बिकॉज अगर अमोनियम आयन मिक्सचर में प्रेजेंट है तो वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा and that are indicated by the white fumes. Now see, in the first test we are getting evolution of NH3 gas, that indicates the zero. Then started the second.
Take OS plus NaOH solution. See here, OS is already ready. That taking in another test tube. Then add NaOH solution. Okay, I am adding the NaOH solution in a test tube. Then हम लोग इसको जब हीट करेंगे उसके पहले ही रेडी करना है कि दूसरे हाथ में ग्लास रॉड रहे और वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डीप करना है. नाउ सी, दिस इज द ग्लास रॉड. ये ग्लास रॉड को मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डीप करने वाली हूँ और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को बर्नर के थोड़ा दूर ही रखना है. तो सी, पहले मैं हीटिंग को लगाऊंगी. सी, जैसे अमोनिया रिलीज हो रहे हैं, there is a gas, there is a white fumes. In the second test we are getting the dense white fumes of NH4Cl. That indicates the ammonium ion is present, NH4 plus. Then under the group 0, next topic, confirmatory test for ammonium ion. This is your first cation and there is a confirmatory test. And there are two tests are written here. First is the OS plus Nestlus reagent in excess. And second, OS plus picric acid. How to prepare the Nestlus reagent is given in that test. In your laboratory, there is ready Nestlus reagent, so there is no necessary to prepare this. हम लोग वो directly use करने वाले हैं. And the second test we are using the picric acid. That picric acid is the 2,4,6 trinitrophenol. And these are the two confirmatory tests for the NH4 plus. Now see the first test, OS plus Nestlus reagent. Then take the one clean test tube and add the OS. Right? तो सीटी जब कर रहे हो तो आप लोगों को 2 सीटी परफॉर्म करनी है. मैंने 2 टेस्ट ट्यूब में पहले ही ओएस रेडी करके रखा है. तो फर्स्ट मैं नेस्लस रिएजेंट के लिए यूज़ करूँगी और नेस्लस रिएजेंट का टेस्ट जब कर रहे हैं तो ओएस मिनिमम क्वांटिटी में लो, क्योंकि नेस्लस रिएजेंट हमें एक्सेस में यूज़ करना है. तो जितना ज़्यादा ओएस लोगे फिर उतना नेस्लस रिएजेंट लगेगा. तो यहाँ पे देखो मैंने ओएस कम ही लिया. देन ऐड द नेस्लस रिएजेंट इन द टेस्ट ट्यूब. राइट, सी जैसे मैंने नेस्लस रिएजेंट डाला है तो वहाँ पे आप लोगों को ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल गया. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन प्रेसिपिटेट दैट इंडिकेट्स अमोनियम आयन कन्फर्म. दिस इज फर्स्ट सिटी. देन सेकंड सिटी, टेक अ OS and add picric acid. Here is the picric acid 2,4,6 trinitrophenol. Then add this in OS. Right, this is your OS. Right. After addition of picric acid, there is a 2 layer is here. तो हमें टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है ताकि हमें येलो प्रेसिपिटेट मिल जाए. सी, on the walls of the test tube there is a yellow precipitate is formed. That indicates the presence of ammonium ion. Clear? These are the 2 confirmatory tests for the ammonium ion. Clear? Then started the detection of second group on the next page. Now see student, there is a one group we are getting, that is group number 0. Then there is a one group is remaining and that one group is coming from the above table. That table is present on page number 102. There are total 6 steps. In these 6 steps, we are getting the one step. That first step for the group number 1, second step for group 2, then up to the group 6. There is only the one group is present. Then first started with group number 1, OS plus dilute HCl. Then see, we are taking the small quantity of OS in a test tube. Now see, I am preparing the OS. Then take this OS in a test tube.
then add dilute HCl. See, if there is a presence of group number 1, then we are getting the white PPT. If there is an absence of group number 1, there is no white precipitate. Then see, I am adding the dilute HCl. See, after the addition of dilute HCl, shake test tube well and then observe if there is a formation of white precipitate or not. Then see, there is no formation of any white precipitate. This indicates there is an absence of group number 1. Clear? Then perform the test number 2. Take the small quantity of OS in a test tube. This is the clean test tube. Then add small quantity of OS. Right? अभी देखो सेकंड टेस्ट में क्या दिया हुआ है, OS प्लस डाइल्यूट HCl प्लस हीट एंड देन एड H2S गैस और वाटर. देन फर्स्ट टेस्ट अगर आप लोगों को एब्सेंट मिलती है तो उसी मोमेंट पे हमने क्या किया था, OS प्लस डाइल्यूट HCl. तो ये सॉल्यूशन भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. राइट? या फिर आप लोगों को अलग से बनाना है तो आप लोग अलग से भी बना सकते हो. क्लियर? Then first add dilute HCl. Shake well. Then heat the solution. It is not boil, just heat. हमें सॉल्यूशन को कम्प्लीटली बॉईल नहीं करना है, उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए हीट करना है ताकि वो मिक्सेबल हो जाए. वो होने के बाद उसमें हमें H2S गैस या फिर H2S वाटर ऐड करना है. तो यहाँ पे सी, आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में था कि H2S गैस को कैसे बनाना है. राइट? तो H2S गैस बना के फिर वो जो वहाँ पे एक रबर ट्यूब रहती है, that rubber tube is deep into this solution. If there is a bubbles are coming, then H2S gas is passed into this solution. ये वन तरीका रहता है अगर उसी मोमेंट पे H2S गैस जनरेट हो रही है तो. अदरवाइज H2S गैस जो बन रही है उसको टैप या डिस्टिल वाटर में एब्जॉर्ब करके रखना है. राइट? और ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ सॉल्यूशन रहता है उसको H2S गैस वाटर बोलते हैं. And we are already prepared this H2S gas water. That H2S gas is absorbed in water. Now we are adding this solution and see which observation we are getting. In the solution there is a formation of black precipitate. Right? There is a formation of black or yellow PPT that indicates the presence of group number 2. Right? Here is a black precipitate is formed. Clear? That means we are getting the group number 2 present. Right? In your first step, that is OS plus dilute HCl, there is no white PPT. So we are taking here no white PPT, group 1 absent. Then in second test, we are taking OS plus dilute HCl heat and then H2S water. For this, we are getting the black PPT, not the yellow. So we are writing only the black. Then there is the inference is here, group 2 present that contains Cu2 plus or As3 plus, that is copper or arsenic ions. Clear? Then there is a comparison between which cation is present, but from the dry test we are getting the Cu2 plus. Then आगे आप लोगों का टेस्ट नंबर 3 है, 4th है, 5th है, 6th है. There is necessary to perform this? No, because we are getting the two groups. First we are determining the group 0 and then from this test we are getting the step number 2, that is group number 2.
देन आगे के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को स्टेप नंबर 2 प्रेजेंट नहीं मिलती तो हम 3, 4, 5 और 6 में ढूंढते कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। देन व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? टू एनालाइज दिस ग्रुप नंबर 2, क्योंकि ग्रुप नंबर 0 का एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देन स्टार्टेड द एनालिसिस ऑफ ग्रुप 2, दैट इज द एंड ऑफ द पेज 102, राइट। एनालिसिस ऑफ ग्रुप 2, और ग्रुप 2 में आप लोगों को 3 रेडिकल्स दिखाई दे रहे हैं, Pb2 प्लस Cu2 प्लस As3 प्लस। देन देर इज अ फर्स्ट टेस्ट OS प्लस डायलूट HCl प्लस H2S वाटर। इन दिस टेस्ट विच PPT वी आर गेटिंग? अभी हम लोगों ने किया था तो वहाँ पे हमें क्या मिली थी? ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टिक करेंगे, दैट इज द ब्लैक PPT, राइट, क्योंकि येलो हमें नहीं मिली है। And that black PPT indicates the presence of Pb2 plus and Cu2 plus ions. Then दोनों में कंपैरिजन है कि उसमें से क्या है, तो आप लोगों को वो कंपैरिजन नेक्स्ट टेस्ट में कंप्लीट करना है। दैट इज ग्रुप 2 PPT, जो फर्स्ट टेस्ट में ब्लैक PPT मिली है वो PPT हमें लेनी है, और उसके अंदर मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 ऐड कर रहा है। दैट इज द 1:1 रेशियो। ये आप लोगों को लेबोरेटरी में डायरेक्टली रेडीमेड सॉल्यूशन मिलेगा, 1:1 HNO3 प्लस H2SO4। नाउ सी दिस टेस्ट, टेक द ब्लैक PPT, देन सी दिस इज योर टेस्ट फ्रॉम ग्रुप 2। बट अभी देखो इसके अंदर बहुत सारा सॉल्यूशन भी है, तो इसमें जो PPT है उसको हल्के से नीचे सेटल होने देना है to black PPT, then add 1:1 solution of HNO3 and H2SO4. After the addition of 1:1 HNO3 and H2SO4, there is no formation of white precipitate. See that black particles are present in solution. There is no formation of white precipitate. That indicates the presence of Cu2 plus ion. And there is an absence of Pb2 plus ions. Clear? We are getting no PPT, no white precipitate. That is observation number 2. Clear? That indicates Cu2 plus. Then see, there is a next test is given on next page, that above solution plus NH4OH in excess to form blue coloration, Then see, this is your above solution. In that solution we are adding the ammonium hydroxide, मुझे हाइड करने के लिए नहीं जमता है फिर। We are getting the blue color solution, right? There is a formation of blue color solution that indicates the presence of Cu2 plus ions. Clear? After this test, there is something is written here, above solution plus NH4OH in excess. To form the blue coloration, that indicates Cu2 plus present. Then after this test, dissolve the black PPT of group 2 in aqua regia, dilute with water and use this solution for the confirmatory test of Cu2 plus. See student, ये आप लोग ब्लैक PPT को एक्वारेजिया के अंदर डिजोल्व करके वो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, बट दिस इज द लेंदी प्रोसेस फॉर द एग्जामिनेशन. सो देर इज वन easy way to perform the confirmatory test of Cu2 plus. You are directly take the OS for confirmatory test. There is the next topic, CT for Cu2 plus. Instead of above solution, we are taking the OS. There is the first CT, OS plus acetic acid plus K4FeCN6, potassium ferrocyanide. Second CT, OS plus Ki, and third CT, OS plus NaOH. Then performing the first CT,
OS plus acetic acid plus K4FeCN6. See, we are taking the clean test tube, and in this clean test tube, take the OS. This is the OS. Now add acetic acid solution in it. Right? After addition of acetic acid, shake the test tube and then add potassium ferrocyanide, that is K4FeCN6. Here, after the addition of K4FeCN6, we are getting the chocolate brown PPT. Right? This is the chocolate brown precipitate. Clear? This confirms the Cu2 plus ions present in mixture. This is first city. Now we are perform the second city. Take the OS in another clean test tube. See, this is the OS. Now we are adding the Ki solution. After addition of Ki solution, we are getting the white precipitate. Then after the addition of Ki solution, we are getting the brown color solution, and this brown color solution contains the white precipitate. अभी वीडियो में तुम लोगों को इतना एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ब्राउन कलर सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो तुम लोगों को लगेगा कि ब्राउन पीपीटी है, बट मुझे यहाँ पे आंखों से दिखाई दे रहा है कि ब्राउन कलर सॉल्यूशन के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट है. उसको अगर मैं अच्छे से टैप करूँगी नीचे, तो थोड़ी देर के बाद इसमें वाइट प्रेसिपिटेट सेटल हो जाएगी जो नीचे बैठ जाएगी. फिर बाद में थोड़ी देर के बाद हम लोग देख सकते हैं. तो इसको मैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख रही हूँ. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट इन ब्राउन कलर सॉल्यूशन. Then there is just third city is remaining. Take the small quantity of OS in a test tube and then add NaOH solution. Here is the NaOH solution. We are add NaOH in OS. See here. After the addition of NaOH solution, there is the formation of blue PPT. And this blue PPT turns black on heating. But see, in the test tube, there are the large amount of PPT. तो इतने PPT को अगर मैं हिट करूँगी तो उसको ड्राई होने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा. क्लियर? तो मैं इसको टैप कर रही हूँ और थोड़ा सेटल होने के बाद ऊपर का डिकाइन कर दूँगी और थोड़ा सा ही क्वांटिटी लूँगी और उसको हिट करके देखूँगी कि वो ब्लैक हो रही है कि नहीं. क्लियर? Then take this PPT in another test tube. अभी देखो मैंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्यूशन और पीपीटी ले रही है क्योंकि वो सेटल नहीं हो रही थी, तो थोड़ा हल्का सा सॉल्यूशन भी लिया हुआ है. नाउ वी आर हिटिंग दिस सॉल्यूशन. हिट दिस सॉल्यूशन. जितना आप लोगों को भर भर के पीपीटी मिलेगा, बट उसके अंदर क्या रहता है कि वाटर भी रहता है NaOH सॉल्यूशन का, उसको ये इवेपोरेट होने के लिए टाइम लगता है, फिर वो पीपीटी जल्दी ब्लैक टर्न नहीं होती है. अभी देखो पीपीटी के अंदर का वाटर पूरा निकल चुका है और नीचे से सॉल्यूशन ब्लैकिश टर्न होना स्टार्ट हो गया है. देखो टेस्ट ट्यूब में अभी पीपीटी ब्लैक होने लगी है.
क्योंकि पीपीटी हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करके नहीं ले रहे, आप लोग सॉल्यूशन यूज़ करने वाले हो। तो सॉल्यूशन में जो वाटर रहता है पहले उसको इवेपोरेट होगा, तब जाके पीपीटी ब्लैक में टर्न होगी। तो थोड़ा सा वेट करना है कि बहुत मिनिमम क्वांटिटी लो और उसको हीट करो। क्लियर? हियर इज द confirmatory test of Cu2 plus is completed. There are the 3 cities given under the copper test 1, 2, 3. But for the exam we are only the 2 confirmatory tests are performed. And you all are listen, for the confirmatory test of Cu2 plus we are using the OS instead of above solution, right? बिकॉज उसको एक्वारेजिया में डिजोल्व करके क्लियर सोल्यूशन बना के वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, और सिटी आप लोगों को ओएस में भी मिलती है, तो हम लोग ओएस ही यूज़ करेंगे। क्लियर? हियर इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 23 इज कंप्लीटेड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीटी ऑफ Cu2 plus, your mixture contains the 2 cations, that is NH4 plus and Cu2 plus. You are confirming that there is group number 0 for NH4 plus and group number 2 for Cu2 plus is completed. Their analysis is completed. Then their confirmatory tests are completed. Then there is a result is given on page number, that on page number 107. This page number 107, there is a result is given. The given inorganic mixture contains following 2 cations, that is basic radicals. First is Cu2 plus and second is NH4 plus. Clear? These are the 2 cations under experiment number 23, mixture number 1. यह आप लोगों का पूरा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है ये पेजेस पे, राइट? अभी जो हम लोगों ने टिकिंग किया है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रिगार्डिंग दैट पॉइंट नंबर ई, वो हमें पूरा एक्सपेरिमेंट नंबर 23 मिक्सचर नंबर 1 के अंडर लिखना है। सी, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 23 मिक्सचर नंबर 1। देर इज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, कलर, नेचर, जो मिला है वो यहाँ पे नोट डाउन करते जाना है। और इसका मैं एग्जैक्टली तुम लोगों को पीडीएफ बना के बाद में भेजने वाली हूँ, तो पहले से ही तुम लोग लिख के मत रखो। क्लियर? यू ऑल आर सी ओनली द रिकॉर्डिंग, और जो एक्सपेरिमेंट है वो कम्प्लीटली समझ लो कि कैसे परफॉर्म करना है। राइटिंग वर्क आप लोग मत करो, मैं पीडीएफ में भेजने वाली हूँ। क्लियर? ऑल दिस पॉइंट्स with the question answers. Now all students, here is your chemistry experiments are completed for the board exams. Clear? Now see student, here is your experiment number 23, mixture number 1 is completed. But this mixture number 1, जैसे हम लोगों ने फाइंडिंग स्टार्ट किया था टू आइडेंटिफाई द 2 cations in given mixture, that has started from page number 99. Then 99, then going to the next page, then 99 to the last, there is result is given for this experiment, that on page number 107, right? That means from page number 99 to 107, all pages are given to identify which 2 cations are given in inorganic mixtures, right? There are lots of steps included under this experiment, same for the anions also. There are some steps given in anions and cations. Then this cation steps started from page number 99, right? On this page 99, if you see correctly, there is a picture of scissor is given and there is written cut here, right? In the first experiment or in the activities, I am already telling from this year that chemistry handbook is not allowed for the board practical examination. In the last year, up to the last year, for the chemistry subject, handbook is allowed, but
from this year handbook is not allowed for the practical examination, but for these two experiments, experiment number 20 and experiment number 23, that is identification of cations and the anions. For that cations from page number 99 to 107, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था अप टू द रिजल्ट, ये सभी कटिंग करने के लिए दिए हुए. फॉर ओनली these two experiments we are using these cutouts to perform the experiments, right? जब आप लोगों की बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगी और जिस स्टूडेंट को ये दोनों एक्सपेरिमेंट में से आएगा उन स्टूडेंट्स को ये पेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोग इसमें से देख के वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाओ. बट फॉर द रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों का टाइट्रेशन रहे या बाकी भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने कंडक्ट किए, थर्मोडायनेमिक्स, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, देन केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट किया, then titration, remaining all experiments, that handbook is not allowed. Clear? Only for cations and anions these cutouts are provided for the board practical examination. Same for the anions also. बाद में ये तुम लोग देख लो अच्छे से, वहाँ पे कट हियर लिखा हुआ है. that cutouts are provided for the board exam. Now clear? Then this cations experiment is coming for the 10 marks total in the question number 3. For the board practical examination, that question paper is given at the end of this handbook. Then see here, on the page number 145, right? On the page number 145, format of question paper, that is the board practical examination का जो question paper रहेगा वो आप लोगों का सेम ऐसे ही रहेगा जो पेज नंबर 145 पे दिया हुआ है. Now see, I am already explained this question paper when I am taking the activity number 6, right? एक्टिविटी नंबर 6 के टाइम पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया था. फिर भी अभी थोड़ा सा ओवरऑल बताऊंगी. दैट सी, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 is given. That question number 1 contains the small a and small b. That small a is certified general and completed practical notebook published by बाल भारती, that having the 5 marks. ये अगर आप लोगों का सर्टिफाइड है तो इसके फुल 5 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे. Then B point, small b is the oral. This oral strictly based upon experiments or activity allotted during examination. That means जो आप लोगों की ओरल होने वाली है उस दिन आप लोग जो प्रैक्टिकल्स, जो एक्टिविटी, जो whatever, जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे उसके ऊपर ओरल होने वाली है, राइट? और ये ओरल डिपेंड से आप लोग कितनी अच्छे से देते हो उसी के ऊपर आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज देर आर कटिंग ऑफ मार्क्स इन दिस बी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, राइट? तो स्ट्रिक्टली ओरल के लिए आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से पढ़ के रखने हैं. Up to the last year, that oral is coming for the 3 marks, but from this year, oral having the 5 marks. You all are clear this? क्योंकि 25 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल करनी है आप लोगों को, उसमें से तो 5 सर्टिफाइड जर्नल के लिए जाएंगे, बाकी बचे 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के. बाकी जो ऊपर के 10 मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, राइट? Then there is a question number 2, that is quantitative estimation. Determine the concentration in terms of molarity of K-MnO4. ये हम लोगों ने किया था, वहाँ पे देखो हाईलाइटेड किया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड ऑब्लिक FAS. तो इसमें से हम लोगों ने सिर्फ FAS का किया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को एग्जाम को FAS का ही आएगा, right? And that having the 10 marks. Then see, after the question number 2, there is a question number 3 are given. That question number 3 A, B, C, D, and there is a last one E and F.
तो अभी ये सभी क्वेश्चन 3 तुम लोगों को सबको करने हैं क्या? नहीं. दैट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बोथ आर द कंपल्सरी क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन नंबर 3 या आप लोगों के एग्जाम को जो टेबल नंबर रहेगा उसके ऊपर डिपेंड्स है. तो किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 3 A आएगा, देन नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 3 B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, E या फिर F आ सकता है. तो उसके अंडर जितने सब क्वेश्चन है वो आप लोगों को फॉलो करना है. देन इन दिस क्वेश्चन नंबर 3B, that is the electrochemistry experiment, and this electrochemistry experiment are not carried out for this year. So ये क्वेश्चन नंबर 3B आप लोगों को नहीं रहेगा. इसको छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन 3 दिए गए ऑप्शनल, उसमें से आप लोगों को आ सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 3A क्या है? केमिकल काइनेटिक एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन का लिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट. और ये पूरी आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए आएगा. क्लियर? देन देर इज अ क्वेश्चन नंबर 3C इज गिवन, राइट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3C इज डिटेक्शन ऑफ 2 बेसिक रेडिकल्स फ्रॉम द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर, राइट. यही आप लोगों का लास्ट एक्सपेरिमेंट था. अभी ये पूरे 10 मार्क्स के लिए आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 में, और सिर्फ इस क्वेश्चन को आप लोगों को कटआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. क्लियर? देन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3D. इन दिस D पार्ट, A पार्ट इज अ कंपल्सरी, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ 2 एसिडिक रेडिकल, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 20 हम लोगों ने किया था वो, दैट कमिंग फॉर द 6 मार्क्स. अभी क्वेश्चन नंबर 3D में A पार्ट रहेगा, एसिडिक रेडिकल 6 मार्क्स. देन उसके साथ B पार्ट दिए हुए, देर इज ऑप्शनल कि दोनों B में से कौन सा आप लोगों को उस दिन रहेगा. देर इज B फर्स्ट एनी वन एक्टिविटी, या तो उसमें से एक्टिविटी दी जा सकती है आप लोगों को, या फिर उसके नीचे B पार्ट लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें से एक ही कंपाउंड दिया जाएगा, हम लोगों ने 4 कंपाउंड्स लिए थे. देन उसके साथ दिया जाएगा डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स. इसमें से प्रोटीन्स, फैट हम लोगों ने नहीं किए तो वो नहीं रहेंगे. देर इज जस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल इज कमिंग फॉर द एग्जाम. तो कार्बोहाइड्रेट और ऑयल में से आप लोगों को दोनों में से कोई तो एक कंपाउंड दिया जाएगा और वो आप लोगों को डिटेक्ट करना है, राइट. दैट बोथ हैविंग द 2 मार्क्स. क्लियर? देन there is the next one is question number 3A. A part is the thermochemistry experiment. This thermochemistry experiment is coming for the 6 marks. इसमें हम लोगों ने डिसोल्यूशन भी लिया हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन भी लिया है और डिस्प्लेसमेंट भी लिया हुआ है. तो ये तीनों में से आप लोगों को कोई तो एक रहेगा. there is any one, and with that thermochemistry experiment there is activity और फंक्शनल ग्रुप और कार्बोहाइड्रेट ऑयल. जो ऊपर का B पार्ट है, ये देखो B पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का DEF में B पार्ट, यहाँ पे एक्टिविटी हो सकती है या फिर नीचे का B हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द टेबल्स. क्लियर? ये सेम दिया गया है B पार्ट्स और में, तो कोई तो एक होगा. क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे दिया हुआ है एनी वन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रिपरेशन. हम लोगों ने 2 प्रिपरेशंस कर चुके हैं. एक है there is a one preparation is completed, that is the potash alum, right. पोटैश अलम का इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन किया हुआ है हम लोगों ने, तो वो आएगा आप लोगों को 6 मार्क्स के लिए, और उसके साथ में एक्टिविटी या फिर ये नीचे का पार्ट रहेगा. दैट इज क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन पेपर कमिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, राइट. दिस क्वेश्चन पेपर इज गिवन ऑन पेज नंबर 145. इस 145 के पहले जो पेज नंबर दिया हुआ है दैट इज 144. देन 144 के पहले आप लोगों को दिया हुआ है पेज नंबर 143 इन योर हैंड बुक्स, राइट. और वहाँ पे लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम प्रपोज एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. तो क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों ने समझ लिया. अभी क्वेश्चंस जो आप लोगों को उस दिन आएंगे उनका मार्किंग सिस्टम भी आप लोगों को पता होना चाहिए.
राइट। तो मार्किंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो क्लियर ही है आप लोगों का। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपल्सरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दैट इज टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का मार्किंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे 10 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो मेन पार्ट है आप लोगों का एक्यूरेसी ऑफ ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग की अगर एक्यूरेसी इससे कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड रीडिंग है 9.6 ml, तो 9.6 की 0.2 ml ऊपर और 0.2 ml नीचे अगर आप लोगों को रीडिंग्स मिलते हैं तो आप लोगों को फुल 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 9.6 के 0.3 ml ऊपर और 0.3 ml नीचे अगर मार्क्स रीडिंग्स जाते हैं आप लोगों के, तो वहाँ पे 1 मार्क्स कटिंग हो जाएगा आप लोगों का। देन देर इज अ प्लस माइनस 0.4 ml, देन वी गेट ओनली द 1 मार्क्स फॉर द ब्यूरेट रीडिंग। देन अगर 0.5 हो जाते ऊपर नीचे तो आप लोगों को वहाँ पे पूरे 0 मार्क्स मिल सकते हैं ब्यूरेट रीडिंग के लिए। और ब्यूरेट रीडिंग ये अगर गलत हो जाएगा आप लोगों का, देन योर कैलकुलेशन एंड रिजल्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। जब आप लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो तो ए पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एफएस, राइट। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप लोगों को एग्जैक्टली बनाना है। जो भी प्रिकॉशन लेने थे एक्सपेरिमेंट दौरान आप लोगों को बता चुके हूँ। सेकंड, एफएस जब आप लोग एग्जैक्टली बना रहे हो तो सेकंड पॉइंट है कि रीडिंग आप लोग एग्जैक्टली लो। एग्जाम के टाइम पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो और आजू बाजू के टेबल्स के देखते रहते हो, उसको ये रीडिंग मिला, उस स्टूडेंट को ये मिला। देन कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग एग्जैक्ट रीडिंग्स निकालो, जो मिल रहा है वो आप लोगों को नोट डाउन करना है और वही करेक्ट रहता है। डोंट गेट कंफ्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्लियर। देन देर इज अ नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। दिस केमिकल काइनेटिक्स इज कमिंग फॉर द 10 मार्क्स and here is the 10 marks distribution. Only there is a change. See here, केमिकल काइनेटिक्स का अगर एक्सपेरिमेंट ओपन करके देखोगे तो कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए 3 मार्क्स दिए हुए, देन ऑब्जर्वेशन के लिए 3 मार्क्स दिए हुए, देन कैलकुलेशन के लिए 2 मार्क्स दिए हुए। तो अभी आप लोगों का कैलकुलेशन कहाँ है? जब आप लोग अंदर देखोगे तो वहाँ पे कुछ अलग से कैलकुलेशन दिया हुआ नहीं है। एक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन एंड देयर इज ऑब्जर्वेशन टेबल, राइट। और इसी टेबल के अंदर ही आप लोग कैलकुलेशन करते हो। देयर इज कैलकुलेशन ऑफ 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो एग्जाम के लिए आप लोग सिर्फ क्या करोगे, जो आंसर शीट मिलेगा, जिन स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट आएगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशन में आप लोग 1/t का कैलकुलेशन लिखो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ t, राइट। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लोग 1/t टाइम लिखोगे तो वहाँ पे सिर्फ आंसर पुट करते हो कि ये 1/t का आंसर है। तो नीचे सिर्फ क्लास ए 1/t इक्वल टू उसके आंसर्स फाइंड आउट करोगे तो ये कैलकुलेशन में दिखाओ, ताकि कैलकुलेशन के भी आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाए, क्लियर। देन देर इज अ ग्राफ दैट हैविंग द 1 मार्क्स, देन द रिजल्ट दैट इज आल्सो द 1 मार्क्स, क्लियर। देन देर इज अ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने इस साल के लिए नहीं लिया है, right? Then going to the next page. Then see on the next page there is a detection of 2 basic radicals. तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को पूरे कंप्लीट 10 मार्क्स के लिए आने वाला है, राइट। तो ये 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स को कितने मार्क्स है। जब आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन किया था, ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन आई एम टेलिंग all steps having the marks, so do not miss any step, right। नीचे एसिडिक रेडिकल्स का भी मार्क्स सिस्टम दिया हुआ है, वहाँ पे भी देखो हर स्टेप्स के लिए मार्क्स है। ड्राई टेस्ट के लिए 1 है, देन कंफर्मेटरी और डिटेक्शन के लिए 2 मार्क्स दिए हुए, और रिजल्ट में दोनों में लिखा हुआ है कैटायंस एंड अनायंस के रिजल्ट विथ करेक्ट चार्जेस। रिमेंबर लास्ट में मैंने बताया था रिजल्ट लिखते टाइम दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। देन देयर इज अ नेक्स्ट वन थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के लिए भी दिए हुए कि 6 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे।
Clear? Then there is a F, 3F, preparation of inorganic compound. Right? इसके कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए 4 मार्क्स है और ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट के लिए 1 मार्क्स है. राइट? देन नेक्स्ट वन एक्टिविटी. एक्टिविटी हम लोग 2 ले चुके हैं, एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 6. तो एक्टिविटी के लिए पूरे 4 मार्क्स है. तो ये 4 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए? कंडक्शन ऑफ एक्टिविटी दैट हैविंग द 2 मार्क्स एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट दैट हैविंग द 1 मार्क्स. Then marking scheme for functional group. Marking scheme for functional group दी हुई है. There is a 1 marks. That is detection of functional group that having 1 marks. And structure and result of the functional group that having the 1 marks. इससे आप लोगों को ये 2 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट से. Clear? That is also कार्बोहाइड्रेट और ऑयल के लिए दिए गए 1 marks. This functional group and carbohydrates that are coming for the 2 marks. Clear? This is your mark system for the board practical examination. अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किए हुए, जो मतलब मैंने रिकॉर्डिंग सेंड किए हुए, जो आप लोग लिख चुके हो अभी तक, तो लिखे हुए एक्सपेरिमेंट्स पे पेंसिल से मार्क सिस्टम समझ लो लिख के कि कौन कौन से पॉइंट्स, क्योंकि हैंडबुक अलाउड नहीं है अभी, सिर्फ कटायंस और अनायंस एक्सपेरिमेंट के लिए हैंडबुक अलाउड से. तो वो आप लोगों को क्लियर दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट मुझे लिखना है. क्लियर? फिलहाल तो अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. दैट डिपेंड्स ऑन द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करते हैं वो, बट यू ऑल आर रेडी फॉर द थ्योरी बोर्ड एग्जाम एंड प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम, राइट? देन ऑल द बेस्ट फॉर बोथ एग्जाम्स.